Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you're enjoying the best of health. I welcome you in my class, that is English for grade 2. We are going to start Unit 9. It's a beautiful poem with title, Here is the Winter. My dear fellow teachers and my dear students, first we'll discuss the SLO Based Lecture division for this unit, and then we'll discuss what this unit is all about. So in Lecture 1, we'll learn about masculine and feminine, and we'll cover the SLO to identify and classify gender of naming words from the immediate environment, masculine and feminine. In Lecture 2, we'll learn about substitution words, and we'll cover the SLO to distinguish between and use substitution words. Lecture 2B, we'll learn about the punctuation, and we'll cover the SLO to identify punctuation words in a sentence, for example, capitalization, comma, full stop, question mark, etc. Lecture 3, under the title of language focus, we'll learn about rhyming words, and we'll cover the SLO to articulate and use simple rhyming words in writing. Lecture 4, we'll learn about consonant clusters, and we'll cover the SLO to identify initial and final consonant clusters. Lecture 5, we'll read and understand the poem, and we'll cover the SLO to read and recite short poems or nursery rhymes with action, pronounce and match spoken words with written words. Lecture 6, under the title of oral communication skill, we'll learn to introduce ourselves and others, and we'll cover the SLO to demonstrate common conventions and dynamics of oral interactions in group to introduce themselves and others. Lecture 7, under the title of writing skill, we'll learn about a rebus story, and we'll cover the SLO to use pictures or rebus in the text to increase understanding, replace rebus with words to complete a given story. Lecture 8, under the title of writing skill, we'll learn to fill in the speech bubbles, and we'll cover the SLO to fill in the speech bubbles and cartoon strips with appropriate formulaic expressions or a simple dialogue. Use appropriate body language for different communicative functions. Yes, my dear students and my dear fellow teachers, this is the SLO based lecture division for this unit. Now let's see what this unit is all about. The title of the poem is Here is the Winter. Yes, my dear students. बेटा विंटर इज अ सीजन है ना, ये सर्दियों के बारे में एक पोम है, और ये सारी चीज़ें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्रिएट की हैं, ये हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला से जोड़ती हैं, इनको नेचर कहते हैं। तो ये पोम जो है ये नेचर के बारे में है, और जब भी हम नेचर के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब है कि हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके लिए हमें अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए, राइट। सो इस पोम में विंटर यानी सर्दियों का जिक्र है। अब देखते हैं कि पोइट्स ने सर्दियों को कैसे डिस्कस किया है। सबसे पहले एक्सक्यूज मी, व्हाइल वी वर स्लीपिंग थ्रू द नाइट, पोइट कह रहे हैं कि जब हम रात को सो रहे थे, स्नो फ्लेक्स आर फॉलिंग सॉफ्ट एंड वाइट, तो बर्फ के गाले जो स्नो होती है ना बेटा, ये क्योंकि हवा में जब ये नीचे गिर रही होती है तो ये आपस में एक्यूमुलेट हो जाती है, जिसको आपस में जुड़ जाते हैं, ये उसको कहते हैं स्नोफ्लेक्स। और ये आराम से ऐसे नहीं कि गिरती है, ऐसे हवा में तैरती हुई आराम से ज़मीन पर आती है, और ये बहुत नर्म और वाइट होती है, सफ़ेद होती है। तो ये शायद कह रहे हैं कि हम सो रहे होते हैं रात को और बर्फ़ गिरना, स्नो पड़ना शुरू हो जाती है। Floating down with never a sound, silently covering all the ground. तैरती हुई वो बगैर किसी आवाज के खामोशी से पूरी जमीन को ढांप लेती है। Robin comes with his scarlet breast. Robin एक बड़ा खूबसूरत बर्ड है बेटा, ये सर्दियों में आता है, और शायर ने कहा है कि ये अपनी ये सुर्ख सीना जो इसका है, ये इसकी निशानी है, यही चीज़ इसको दूसरे बर्ड से डिफरेंट बनाती है। तो रॉबिन जो है वो अपने सुर्ख सीने के साथ आता है, कॉलिंग स्वीटली, बड़ी मधुर आवाज में, बड़ी मीठी आवाज में कहता है, वी कैन सी,
तुम लोग सो रहे हो, उठो। मीन्स बेटा बर्ड्स तो दे चिर्प ना, बर्ड्स जो उनका चहचहाना है, तो शायद ये कह रहे हैं कि उसकी आवाज से हमें ये लगता है कि वो हमें कह रहा है कि उठो, चल के देखो। We all get up and quickly dress. हम सब जल्दी से उठते हैं और जल्दी से कपड़े पहनते हैं। कौन से? स्नो में जाने के लिए बेटा स्नो शूज, स्नो सूट, सारा खुद को कवर करके जाना होता है ना, खुद को सर्दी से और ठंड उससे स्नो से बचाना है। सो आउट टू द गार्डन रश विद ग्ली, और हम बहुत खुशी खुशी जल्दी से बाहर गार्डन में चले जाते हैं। विद स्पार्कलिंग आइज, हमारी आंखें चमक रही होती हैं क्योंकि हम बहुत खुश हैं, तो हमारी आंखें चमक रही हैं। एंड चीक्स आर ग्लो, और हमारे जो गाल हैं, हमारे जो चीक्स हैं वो भी तमतमा रहे हैं, वो भी चमक रहे हैं। वी रोम्प एंड शाउट, हम खेलते हुए जाते हैं और ऊंची आवाज में, बुलंद आवाज में कहते हैं हुर्रे फॉर स्नो, कि वाओ हुर्रे फॉर स्नो। तो देखें कितने खूबसूरत तरीके से शायर ने इस सारी मंजर को बयान किया है कि किस तरह से वो स्नो को एंजॉय करते हैं। तो बेटा अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ ही शानदार है, और हर चीज़ के लिए हमें हुर्रे कहना तो अपनी खुशी का इजहार है। हर चीज़ के लिए हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, जिसमें मौसम भी एक बहुत बड़ी नेमत है। मौसम का चेंज होना, सर्दी गर्मी, हर मौसम की खूबसूरती है, और हर मौसम को अल्लाह ताला ने क्रिएट किया है। कुरान पाक में अल्लाह ताला हमें बताते हैं एंड द चेंजिंग ऑफ द विंड, यानी हवाओं का बदलना। हवा कैसे बदलती है? एक ही जगह पर आप हैं, गर्मियों में गर्म हवा फील होती है, सर्दियों में सर्द हो जाती है, हवा बदल जाती है ना। हु इज चेंजिंग इट? हु चेंजेस इट? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सो चेंजिंग ऑफ द विंड एंड द क्लाउड्स मेड ओबीडिएंट बिटवीन द हेवन एंड द अर्थ। अल्लाह ताला ने इनको आसमानों और ज़मीन के दरमियान फर्माबरदार बनाया है। अल्लाह ताला जो उनको हुक्म देते हैं उसी तरह से वो करते हैं। देयर आर साइंस, ये निशानियां हैं, फॉर अ पीपल, उन लोगों के लिए, हु अंडरस्टैंड, जो समझते हैं, जो समझदार हैं, जो अक्ल से काम लेते हैं। तो बेटा अल्हम्दुलिल्लाह हम वो समझदार हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने जो हमें मौसम दिए हैं, गर्मी सर्दी खिज़ां बहार, सब मौसम खूबसूरत हैं, सब शानदार हैं, और इन सब के लिए हमने क्या करना है? अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। और अल्लाह ताला की बनाई हुई सब चीज़ों का सबसे बड़ा शुक्र ये है कि वो हमें अल्लाह ताला की याद दिलाएं और हमें अल्लाह ताला से जोड़ें। तो ये इस खूबसूरत पोम का से हम ये सीखते हैं कि सर्दियाँ भी और हर मौसम ही अल्लाह ताला की एक नेमत है, और हम उसके लिए अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। राइट? सो बेटा ये अच्छी बातें जो आज हमने सीखी हैं, इनको अपने जहन में रखना है, खुद भी इन पर अमल करना है और दूसरों को भी बताना है। कल इंशाल्लाह ग्रामर के पोर्शन से हम इस यूनिट को स्टार्ट करेंगे। उस वक्त तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।